اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مدینہ منورہ اور بدر شریف کے درمیان ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جسے بیر روحا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام سے تشریف لاتے، پہلے مدینہ منورہ تشریف لاتے اور پھر بدر شریف کے راستے حج کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو اس جگہ 70 انبیاء کا گزر ہوا اور نبیوں کے سردار صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لائے۔ اس کنویں میں آپ نے اس کنویں کے پانی میں کلی فرمائی اور اس کنویں کو برکت عطا فرمائی۔ آج بھی عشاق اس کنویں پر آ کر یہاں کا پانی برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس جگہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے عربی دوست بھی ہیں، کہ یہ بتا دیں کہ یہ میدان اور اس کنویں کو میرے آقا علیہ السلام نے جنتی کنواں اور جنتی میدان فرمایا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے ہمیں بتائی ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، رب عز و جل کی تجلی اس جب پہاڑ پر پڑی تو 3 حصوں میں وہ تقسیم ہوا۔ ایک حصہ جبل احد ہے، ایک حصہ جبل ورقان ہے اور تیسرا پہاڑ ینبو میں ہے جبل ردوا۔ یہ 3 پہاڑ 3 حصوں میں یہ تقسیم ہوا اور جنتی پہاڑ سے کہا گیا ہے۔ آئیے اس پہاڑ کا دیدار بھی کرتے ہیں، کنویں کے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ بڑی مبارک جگہ ہے، یقیناً نبی پاک علیہ السلام کا یہاں گزر ہوا ہے، انبیاء کا گزر ہوا ہے۔ ہم یہاں دعا کرتے ہیں رب کریم سے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، مدینہ منورہ کا سچا اور پیارے آقا علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔ اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، رب کریم انہیں بھی یہ مناظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ جو آپ وائٹ کلر کے پہاڑ کے پیچھے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، جبل احمر لون، جس کا احمر لال اور براؤنش جو کلر ہے، یہ ہے جبل ورقان کا دیدار کیجئے۔ اللہ اللہ، یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کو جنتی پہاڑ کہا گیا۔ هذا جبل حمد شدید الحلاوہ۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ پہاڑ حمد ہے، اور حمد کہتے ہیں میٹھی چیز کو، یعنی یہ پہاڑ میٹھا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے جس کو پہاڑ کو فرما دیا وہ پہاڑ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہے وہ مبارک کنواں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پر بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے اور اس کی برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روحا کا دیدار آپ کر رہے ہیں، پانی بھی بہت نیچے نظر آ رہا ہے لیکن یہ پانی موجود ہے الحمدللہ۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات۔ یہ الشحطہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک بچپن گزرا ہے، اور ہم اب اس جگہ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ طائف شریف سے تقریباً 60 کلومیٹر کا یہ راستہ مزید آگے ہے، اور آج اس مبارک مقام پر ہماری حاضری ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کچا راستہ ہے، قبرستان ہے، یہ پرانا قبرستان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک بچپن، یہی وادیاں ہیں جہاں وہ مبارک بچپن گزرا۔
मक्का पाक से ताइफ आए और ताइफ से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे अश-शुहता का एक इलाका है। ये वही इलाका बताया जाता है जब बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान था। हम यहाँ पहुंचे, अब तो बड़े पक्के रोड बन गए, आसान रास्ता है। मैं सोच रहा था मैं यहाँ हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और वो खवातीन जो बच्चों को लेकर मक्का पाक से यहाँ आई, उनका सफर कैसे कटा होगा। वो ऊँटनी जो बड़ी निढाल सी थी, कमजोर थी, और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब उस पर सवार हुए तो उस ऊँटनी की स्पीड बढ़ गई, उसके अंदर फिर से ताकत आ गई। मगर ये सफर न जाने कितने दिनों में तय हुआ होगा। एक बड़ा मुश्किल रास्ता नजर आता है। यही वो जगह है, यही वो मकाम है। अब इंशाल्लाह आपको कुछ मनाजिर दिखाएंगे कि जहाँ बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुबारक मकान था। यही वो वादियां लगती हैं जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम बचपन में गुजरा करते होंगे। इन पहाड़ों में यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया होगा। इन्हीं जगहों पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे के साथ एक तरह से घुमा करते थे, उनके साथ सफर किया करते थे। करीबी चरागाहें नजर आ रही हैं जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम बकरियों को और इन जानवरों को लेकर जाया करते। और ये भी यहाँ पर वाकयात मिलते हैं कि और लोगों के जानवर इतने फरबा ना होते, मगर जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ जानवर जाते तो वापस आते तो बड़े फरबा होकर आते, बड़े सेहतमंद हो जाते। लोगों ने कहा कि अपने जानवर भी इनके साथ भेजे जाएं, और लोगों ने भी अपने जानवर भेजे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानवर हुआ करते, वो सारे फरबा होकर आते। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बरकत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के यहाँ बहुत सारे मौजूदात का ज़ुहूर भी हुआ। यही करीबी वो जगह है जहाँ शक्के सदर का वाकया हुआ। जी हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक मलाइका तशरीफ लाए थे आसमान से, और सीना मुबारक को शक किया गया, नूर और अनवार और तजल्लियात की बारिश हुई। यकीनन ये बड़ी मुबारक जगह है। ये फजाएं, ये पहाड़, ये तमाम जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम की खुशबुओं से बसी हुई है। रब्बे करीम से दुआ है इन मुबारक वादियों में, मौला करीम इन वादियों के सदके, प्यारे आका के मुबारक बचपन के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे बच्चों को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक बचपन यहाँ गुजरा है। रब्बे करीम हमारे बच्चों को नबी पाक का सच्चा आशिक बनाए। आइए आपको अब वो मनाजिर दिखाते हैं। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। इस वक्त आप एक छोटी सी मस्जिद देख रहे हैं। अब यहाँ वो मस्जिद तो कायम नहीं है, मगर बताया जाता है कि बहुत पुरानी ये जगह मस्जिद हुआ करती थी। अब भी कुछ लोग यहाँ नमाज अदा करते हैं। बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान के बिल्कुल करीब ही ये जगह है जहाँ नमाज की जगह। इंशाअल्लाह हमारी नीयत है थोड़ी देर के बाद मगरिब का वक्त होगा तो हम इंशाअल्लाह यहीं बाजमात नमाज भी अदा करेंगे और इस जगह की बरकतें भी हासिल करेंगे। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, वो मुबारक मकाम बचपन से जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक बचपन जहाँ गुजरा, वो ऊँटनी का यहाँ पर आना, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में रहना, वो झूले का झुलाना, वो नबी पाक का बचपन गुजारना, बचपन में चरागाहों की तरफ जाना, शक के सदर का हो जाना, बहुत सारे मौजूदात का ज़ुहूर होना, इस पूरे गांव के लोगों का नबी पाक से प्यार हो जाना, बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का प्यारे आका की जुदाई का बर्दाश्त ना करना। लेकिन ये सारी वही वादियां हैं जहां ये वक्त गुजरा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम कई माह इसी गांव में रहे, और बताया जाता है 2 मकानात की अब कुछ निशानियां ही बाकी हैं। या तो ये मकान बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था, या यहाँ पर एक और बाकियात सी मौजूद है, ये मकान बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। काश ये मकान वैसे ही रहने दिया जाता, लोग आते, जियारत करते, बरकतें हासिल करते, मगर इस मकान को शहीद कर दिया गया। अब यहाँ इसकी कुछ बाकियात ही मौजूद हैं। आप फिर भी इन फजाओं का, इस जगह का दीदार कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह आपको इस वाक़े के बारे में कुछ तफसील बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
किस तरह यहाँ तक पहुँचे और क्या क्या मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं, मैं सच बताऊं कि दिल की कैफियत बहुत बदली हुई है। जिस तरह तवील सफ़र के बाद बंदा माँ की गोद में पहुंचता है, उसे एक सुकून मिलता है। आज हम भी एक सफ़र करके पहाड़ों पे पैदल चल के एक मकाम पर बैठे हैं, और वो मकाम सैयदतुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी हुजूर, वो मुबारक हस्ती जिनके वतन में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 9 माह गुजारे, फिर उनकी गोद में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त गुजारा। बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा वो है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन्होंने मुल्क शाम को मुलाहिजा फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के सदके यहाँ आकर बड़ा दिल अफसुर्दा भी है कि यहाँ इनका मज़ार अबवा शरीफ में है, मगर उस मज़ार की बेहुरमती की गई है, मज़ार शरीफ को बाकायदा ख़त्म कर दिया गया है। आम आदमी यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता, यहाँ आने भी नहीं दिया जाता, मगर हम कोशिश करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोगों ने हमारी रहनुमाई के कदमों में बैठे हैं। मालिक करीम उनके मज़ार पर अनवार पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। हम गुनाहगारों की इस पाक दर पर हाज़िरी को कबूल फरमाए। यकीनन यहाँ आना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ज़ाहिर है कि अपनी माँ से कौन प्यार नहीं करता, और जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के कदमों में हम आए हैं, इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा हासिल हो जाए, अम्मी हुजूर हमसे राज़ी हो जाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमा दें, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सबको अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। हम यहाँ ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सैयदतुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के सदके हमारी जितने नाज़रीन हैं, जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं, जिन की वालिदा हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए, उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। यहाँ वो मंजर याद आ रहा है कि 6 साल की उम्र थी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इस वक्त हम बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुँचे हैं। वो वक्त कैसा होगा जब मदीना तैयबा से मक्का पाक का ये सफ़र जारी था, और दौरान सफ़र बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई। उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा साथ थी, और मेरे आका जिनकी उम्र मुबारक तकरीबन 6 साल थी, बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का इस बयाबान में इंतकाल हुआ। यही तदफीन हुई। एक नन्हे से बच्चे ने अपनी माँ को दुनिया से जाता हुआ देखा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन से ही बड़े सदमे उठाए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं कि जो आज बेकरारों को करार देते हैं, बेचैनों को चैन देते हैं, गमज़दों को गम दूर किया करते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन में अपनी वालिदा को दुनिया से जाता देखा। अभी दुनिया में नहीं आए थे तो वालिद साहब भी तशरीफ़ ले जा चुके थे, मगर फिर भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो अज़्म व हौसला उम्मत के वाली हैं, आज भी हौसला देते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहरहाल बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार पर हैं, बड़ी इल्तिजाएँ हैं, दिल में बड़ी तमन्नाएँ हैं, दिल की कैफियत अजीब है। हम काफ़ी देर से यहाँ हैं, मगर सच बताएं कि उठने का जी नहीं चाह रहा। ठंडी ठंडी हवाएं हैं, और कहते हैं वो थपक कर माँ जिस तरह बच्चे को सुलाती है, इस तरह की हमारी भी इस वक्त कैफियत हो रही है। जी चाह रहा है यहीं लेट जाएं, यहीं बैठ जाएं। शफीक माँ है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा है। हमें उम्मीद है ज़रूर हमारी झोलियाँ भरी जाएंगी, हम पर ज़रूर करम होगा। हमें बुलाया इन्होंने तो खाली हाथ तो माँ नहीं लौटाती, माँ तो अपने बच्चों पर शफीक हुआ करती है। अल्लाह ताला इन पर करोड़ों रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। याद रहे कि यहाँ ये भी वाज़े करता चलूँ कि अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले में भी और कई जगह पर उलमाए किराम ने ये बहस की है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन जन्नती हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है कि मैं पाक पुश्तों से और पाक रहमों से मुंतकिल हुआ हूँ। और वैसे भी बड़ी अजीब सी बात है कि जिस पेट में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे हों, उसके बारे में कोई ज़बान दराजी करे कि माअज़ अल्लाह वो ईमान वाले ना थे। अरे जिसके सदके से सारी दुनिया को ईमान मिला, जिनके सदके से हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, उनके वालिदैन करीमैन के बारे में कैसे कोई बुरा सोच सकता है? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें कभी भी ऐसा गुमान भी दिल में नहीं लाना चाहिए। याद रहे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मछली के पेट में रहे, चंद दिन रहे, आता है इस बारे में कि वो मछली जन्नत में जाएगी। तो सोचने की बात है कि जिस मछली के पेट में हज़रत यूनुस रहें वो जन्नत में जाए, जिस बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आका रहें
وہ کیسے جنت میں نہ جائیں، بلکہ ان کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ آئیے، مناظر دیکھنے والے تو نہیں، اندھیرا بھی ہے، ہم نے کچھ لائٹ وغیرہ جلا کر ریکارڈنگ کی کوشش کی ہے، شاید ریکارڈنگ بھی اتنی پراپر نہ ہو، لیکن دل کی جو کیفیات ہیں امید ہے آپ تک پہنچ رہی ہوں گی۔ کچھ مناظر دیکھیں، اس مقام کو کم از کم آپ دیکھ لیں۔ قبر شریف تو نظر نہیں آتی، پتھر یہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بتانے والوں نے بتایا، اس لیے ہم یہاں آ گئے ہیں۔ تو آپ بھی یہ مناظر دیکھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ اللہ والوں